الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سیدنا محمد کبھی انسان یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے کبھی انسان یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے. ایسوسیشن صدر راولپنڈی ریسٹورنٹ ایسوسیشن اور اس کے علاوہ راولپنڈی کی ممتاز سماجی مذہبی اور سیاسی شخصیت محترم شیخ عبدالوحید صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم چودھری خورشید انور صاحب کو، چیئرمین پاسبان وطن فاؤنڈیشن، جنہوں نے جہاں دیگر جس طرح حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ملکی سطح کی تہوار ہو، کوئی قومی تہوار ہو، کوئی مذہبی تہوار ہو، تمام تہواروں پہ جو پاسبان وطن کے زیر تمام تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن آج ایک نئی تقریب جو اپنے عظیم دوست جو سماجی کارکن سماجی رہنما محترم شیخ عبدالوحید صاحب کی اعزاز میں آج یہ منعقد کی گئی. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی تقریبات لوگوں کے مرنے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن چودھری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا کہ وہ زندوں کو جو یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ ان کے اعزاز میں جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ شام کا انعقاد کیا گیا. تو میں اپنی جانب سے، میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے، میں ناجو قرآن کی طرف سے چودھری صاحب کو اور شیخ عبدالوحید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات ہونے سے دیگر جو نوجوان جو ہیں جو ان تنظیموں سے وابستہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک شیخ عبدالوحید صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اور یہ ابھی امریکہ جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کا سفر خیر عافیت سے گزارے. وما الینا الا البلاغ. اپنے بزرگوں کو آنر کرنے کا، ان کو عزت دینے کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا. جیسے کہ میرے ایک دوست نے کہا کہ لوگ مرنے کے بعد تقریب کا انعقاد کرتے ہوتے ہیں، لیکن شیخ صاحب خود کی خوش قسمت آدمی ہیں جو اپنی زندگی میں یہ تعریفی کلمات سن کے تو انشاءاللہ امریکہ جائیں گے. آپ جائیں گے یا خوشی جائیں گے؟ آپ جائیں گے. اچھا جی کا ٹکٹ آپ نے کٹوا دیا ہے. بہرحال بہت ساری محفلوں میں تقریبوں میں میں نے یہاں پہ شرکت کی، تقریریں کی. ان سب کے پیچھے سرپرست اعلیٰ شیخ عبدالوحید صاحب ہوا کرتے تھے، عرفان صدیقی صاحب اور خورشید انور صاحب ہوا کرتے تھے. لیکن آج یقین جانیں کہ اپنے ساتھی کو عزت دینا
अपने सरपरस्त आला को इज्जत देना, ये कोई इनसे सीखे। इतनी खूबसूरत महफिल, तालियां मारो सुनते मारो, जो इन्होंने आज इज्जत दी है। यकीन करें शेख साहब के ऑनर में की हुई तकरीब ने मेरा भी दिल जीत लिया है कि यार अगर ये अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने बुजुर्गों को इस इज्जत और इकराम से नवाजते हैं तो फिर हम जैसे नौजवानों की औकात क्या वक्त के साथ अगर हम इनके साथ जुड़े हो गए तो ये हमारे साथ होंगे, क्या हम हमारे करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेख साहब मैं आपकी खिदमात को, चाहे वो रावलपिंडी मरकजी सेहत मिलाद कमेटी के हवाले से हो, पासबान वतन फाउंडेशन के हवाले से हो, या सियासी समाजी खिदमात हो, मैं आपकी तमाम खिदमात को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह आपकी इल्म, उम्र और अमल में बरकत अता फरमाए ताकि आप इसी तरीके से और हजारों लाखों तकरीबों का इनेकाद करते हैं। शुक्रिया आपके साथ चलने वाले हैं कि आज इनके एजाज़ में ये तकरीब जो मुनक्कद की गई तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनके साथ साथ जितने दोस्त अहबाब जो वेलफेयर खिदमत का काम करते हैं तो इनको देख के सब मेरे में सबका जज्बा बढ़ेगा कि जब आप इंसानियत खिदमत करते हैं तो आपका नाम, जैसे मेरे भाई ने कहा कि लोग तो मरने के बाद नाम लेते हैं लेकिन मरने से पहले ही नाम उजारों के सामने आता है। तो मेरा शोबा चूंकि MY वॉलंटियर सिक्योरिटी फोर्स से सारे दोस्त से मुझे बाखूबी जानते हैं। अरसा 20 साल से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जहां के मेरी फोर्स की जरूरत पड़ती है, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, इवन के अभी लाहौर बहुत बड़ा जो इज्तिमा था सिलसिला नक्शबंदिया सैफिया का, वो सिक्योरिटी भी मेरे जिम्मे थी। तो इसके अलावा जो मसाजिद और दीगर जो है ना शोबा जाते हैं। तो अभी मैं बहुत सारे दोस्तों ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए कि मुझे भी एक ख्वाहिश, मेरे आज तक वैसे मैं रुपोश रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कब्रस्तानों का सफाई सुथराई और मुकद्दस तहफ़्फ़ुज़ अवराक़ बहुत सारे मेरे जो शोबा जात हैं जो खिदमत के हवाले से और से मुंसलिक हैं। तो गुजारिश यह है कि जैसे इनका नाम आया है, जो भी मेरी फोर्स में जो लड़के, जो नौजवान ऐसे किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह उनके भी इजाज़ में ऐसा ही शरिया इंशाल्लाह चौधरी खुर्शीद अनवर साहब जो इनको मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि हर इवेंट में पासबान वतन जो है ना, तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि एक हमारे भी किसी जो अच्छा वॉलंटियर जो अपने शोबे में महारत रखता है उनके लिए भी ऐसे एक तकरीब का एहतमाम किया जाए। वामा अलैना इल्लल बलाग। मैंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट सर्विस में गुजारी है। लंबी लंबी तकरीरें तो मुझे नहीं आती, लेकिन शेख साहब का जो साथ है हमारा वो 1978 से आज तक कायम है। और अल्लाह करे कि ये साथ जो है ज़िंदगी भर रहे और जन्नत में भी हम इकट्ठे हों। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बुनियादी तौर पे एजाज मेहदी जो आप इससे पहले बात कर रहे थे, और हम 3 वो क्लास फेलोज़ हैं जो कॉलेज में भी इकट्ठे थे, बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राब्ते मुकम्मल हो गए और एक दूसरे से हम राब्ते में रहे। शेख साहब वाकई मैथमेटिक्स में बड़े लायक थे। तो कल मैंने एक कमेंट इनके ऊपर किया कि यार शेख होगा तो मैथमेटिक्स नहीं उसको आती होगी। मेंबर इंजीनियरिंग रहा और 2 साल पहले रिटायर हुआ। तो मैं भी अपनी इंजीनियरिंग कमेटी के सारे समाजी कामों में इसी तरह हिस्सा लेता हूँ जैसा शेख साहब ने। हमारा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है जिसका इस्लामाबाद चैप्टर का मैं चेयरमैन हूँ अलग के। तो शेख साहब की शख्सियत जो है वो हमजहत है। इनको हम सीरत की तकारीब में भी देखते हैं और दूसरी जितनी समाजी तकरीबात होती हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। वो आप अखबारों में देखते रहते होंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर शेख साहब को बहुत जल्द ये बिज़नेस ना संभालना पड़ता तो हमें एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन मिलना था। जब हम कॉलेज में थे, मैथमेटिक्स में जब भी टेस्ट हुआ, जब भी पेपर हुआ, शेख साहब 100/100 नंबर लेकर आगे आते। हमारे मैथमेटिक्स के टीचर बहुत सख्त टीचर थे, लेकिन शेख साहब चूँकि एक ज़हीन स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स में तो एक दफ़ा पेपर पे एक शेर भी लिख दिया तो
दिलशाद साहब ने, और वो शेर मैं आपको भी सुना देता हूँ। अपने टीचर दिलशाद साहब को मुखातिब करते हुए पेपर के आखिर में, उस पेपर में भी शेख साहब के नंबर पूरे 100 थे। शोहरा बड़ा है इल्म रियाजी में आपका, तूले शबे फराक ज़रा नाप दीजिए। तो प्रोफेसर साहब ने हमारे ख़ास तौर पे वो पेपर सारी क्लास को दिखाया और बताया कि ये देखें कि शेख साहब वैसे मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ इनका अदबी ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है। तो मेरी यही है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि काश इन्हें मजबूरन ये बिज़नेस ना संभालना पड़ता। मैं ये अपने दिल की आवाज़ बता रहा हूँ, वो कि इन्होंने अपने बिज़नेस में भी बहुत काम किया है, लेकिन हम एक अच्छे मैथमेटिशियन से महरूम हो गए। थैंक यू।